فصل فی الصریح والکنایہ، یہ فصل صریح اور کنایہ کے بارے میں، فصل صریح اور کنایہ کے بارے میں۔ صریح کی تعریف کریں گے۔ صریح کسے کہتے ہیں؟ لفظ یکون المراد به ظاہرا، یہ صریح کی تعریف ہے۔ صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو۔ بے تو واضح ہے، اشترائی تو سمجھ آ رہی، یہ کون سے لفظ ہیں؟ صریح ہے، جن کی مراد ظاہر ہے، جن کی مراد کرا تو میں نے پڑھا، اکل تو میں نے کھایا، ذہب تو میں چلا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا، کہتے ہیں کہ صریح لفظ یکون المراد به ظاہر، صریح ایسا لفظ ہے کہ جس کی مراد ظاہر ہو، کقولی ہی، اس طرح کے متکلم کا قول، بے تو اشترائی تو، امثال، اس جیسی اور مثالیں، اس جیسی اور مثالیں۔ اب یہ تو نہیں ہے بے تو میں نے بیچا، میں نے بیچا، سمجھ آ رہی؟ اب اس کو کہے تیری نیت کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تیری نیت کیا ہے؟ بے تو میں نے بیچا، اب تیری نیت کیا ہے؟ نیت وغیرہ کی محتاجی نہیں ہوگی، کیونکہ مراد بالکل ظاہر ہے، واضح ہے۔ وحکمہ، اب صریح کا حکم، میری طرف دیکھیں، صریح کا حکم، صریح کا حکم یہ ہے کہ یہ اپنے معنی کو ثابت کرتا ہے اور اس نیت کی محتاجی نہیں ہوتی، اس میں نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، نیت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں، وحکمہ انہ یوجب ثبوت معناہ بأی طریق، حکم صریح کا یہ ہے کہ اپنے معنی کو کسی بھی طریقے کے ساتھ ثابت کرے گا، اپنے معنی کو کسی بھی طریقے کے ساتھ کان من اخبار، وہ خبر دینے سے ہو، او ناتن، یا صفت سے ہو، او ندائن، یا ندا سے ہو۔ اب دیکھیں میری طرف، ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا انتی طالقن، کیا کہا؟ انتی طالقن، خبر دے رہا ہے، انتی طالقن، تو طلاق والی، تو طلاق والی، انتی طالقن، سمجھ آ رہی؟ اب اس سے طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا، واضح لفظ ہے، انتی طالقن، تو اس میں نیت وغیرہ کی محتاجی نہیں ہوگی۔ اچھا، یا کہتا ہے کہ یا طالقو، انتی طالق صفت ہے، یا طالقو، یا طالقو، سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ اے طلاق والی، اے طلاق والی۔ یا کہتا ہے طلقتو کی، یہ خبر ہے، طلقتو کی، میں نے تجھے طلاق دی ہے۔ اب تینوں صورتوں میں طلاق ہو جائے گی، اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری نیت کیا ہے، معنی بالکل واضح ہے، معنی بالکل، اس کی مراد بالکل واضح ہے۔ ومن حکمہ، اور اس صریح کے حکم میں سے ہے، انہ یستغنی عن النیہ، یہ نیت سے مستغنی ہوتا ہے، نیت سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں نیت وغیرہ کی محتاجی نہیں ہوتی۔ وعلی ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا، اذا قال لامراتی، جب زوج نے اپنی بیوی کو انتی طالقن او طلقتو کی، یا او یا طالق، سمجھ آ رہی؟ یا کہا انتی طالقن، یا کہا طلقتو کی، یا کہا یا طالق، یا کہا طلاق، طلاق نوا بہ الطلاق او لم ینوی، وہ طلاق کی نیت کرے یا نہ کرے، کرے یا طلاق ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟ اچھا، وقضا لو قال لعبدہ، اسی طرح ایک آقا نے اپنے غلام کو کہا انت حرن، انت، یا کہتا ہے حررتک، میں نے تجھے آزاد کیا، یا کہتا ہے یا حرو، اے آزاد، یا حرو، اے، تو غلام صریح لفظ ہے، کیا لفظ ہے؟ صریح لفظ ہے، اس میں نیت وغیرہ کی محتاجی نہیں ہے۔ وعلی ھذا قلنا، اسی اصول پر ہم نے کہا، ان التیمم یفید الطہارہ، ان التیمم یفید، تیمم طہارت کا فائدہ دیتا ہے، تیمم طہارت کا، سمجھ آ رہی؟ اس میں امام شافعی اور امام اعظم علیہ الرحمہ کا اختلاف، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں تیمم طہارت کاملہ کا فائدہ دیتا ہے، طہارت، جس طرح وضو طہارت کاملہ کا فائدہ دیتا ہے نا، اسی طرح تیمم بھی کاملہ کا فائدہ دیتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ کس کا موقف ہے؟ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ تیمم، اس کے بارے میں دو قول ہیں، اس کے بارے میں پہلا یہ ہے کہ تیمم طہارت ضروریہ کا فائدہ دیتا ہے، کس کا؟ دوسرا یہ کہ تیمم یہ ساتر للحدث، حدث کو چھپانے والا ہے، بے وزگی کو چھپانے والا ہے۔ ساتر للحدث کیسے ہے؟ ساتر للحدث دیکھیں، ساتر للحدث، ایک بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، تیمم کر کے نماز پڑھ رہا تھا، اچانک نماز کے اندر اس کو پانی مل گیا، نماز کے اندر پانی پایا گیا، تو کہتے ہیں وہ جناب اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اس کا تیمم، سمجھ آ رہی؟ تیمم ٹوٹ جائے گا، اب بے وزگی ظاہر ہو جائے گی، بے وزگی ظاہر ہو جائے گی۔ اب امام شافعی کہتے ہیں دیکھیں، جب تک تیمم تھا تب تک بے وزگی کو چھپائے ہوئے تھا،
बेवुज़गी पर पर्दा डाले हुआ था। जैसे ही तयम्मुम खत्म हुआ बेवुज़गी ज़ाहिर हो गई। पता चला तयम्मुम तहारत सातिरुन लिल हदस है, सातिरुन लिल हदस है। अनाफ कहते हैं कि जनाब तयम्मुम सातिरुन लिल हदस नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो तयम्मुम खत्म हो रहा है वो अपनी शर्त के ना पाए जाने की वजह से खत्म हो रहा है। वो शर्त क्या थी? पानी पर कादिर ना होना। पानी पर कादिर, जैसे ही वो पानी पर कादिर हुआ उसका तयम्मुम टूट गया, उसका तयम्मुम टूट गया। तयम्मुम सातिरुन लिल हदस नहीं है। बात समझ आ रही? अच्छा आगे, तयम्मुम किसका फायदा देता है? तहारत। इस पर टोटल 6 मसले हैं। कितने मसले हैं? वाला हाजा युखर्रजुल मसाइलु अल मज़हबैनी, यहाँ से लेकर आगे। पहला मसला ये है कि तयम्मुम वक्त से पहले करना जायज है या नहीं। पहला मसला कौन सा है? इसमें इमाम शाफी और हनाफ का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं तयम्मुम वक्त से पहले कर सकते हैं। तयम्मुम वक्त से पहले क्यों? क्योंकि तयम्मुम जो है ये तहारत कामिला का फायदा देता है। जिस तरह वुजू तहारत कामिला का फायदा देता है, इसी तरह तयम्मुम भी तहारत कामिला का फायदा देता है। जिस तरह वुजू वक्त से पहले कर सकते हैं, इसी तरह तयम्मुम भी वक्त से पहले कर सकते हैं। हनाफ शाफी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तयम्मुम तहारत ज़रूरिया का फायदा देता है। किसका फायदा देता है? तहारत ज़रूरिया का फायदा देता है। इसको वक्त से पहले करना जायज नहीं। क्यों? इसकी जरूरत होगी उस वक्त जब फर्ज का टाइम होगा। जब फर्ज का टाइम ही नहीं हुआ, वक्त ही नहीं हुआ, तो लिहाजा वक्त से पहले तयम्मुम करना जायज किसके नजदीक? दूसरा जी, व अदाउल फर्ज़ैनी बितयम्मुमिन वाहिदिन, यहाँ से दूसरा मसला क्या है? एक तयम्मुम के साथ 2 फर्ज अदा कर सकते हैं या नहीं। इसमें इमाम शाफी और हनाफ का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म फरमाते हैं एक तयम्मुम से 2 फर्ज अदा कर सकते हैं। दलील फरमाते हैं तयम्मुम तहारत कामिला का फायदा देता है। जिस तरह वुजू तहारत कामिला, जिस तरह एक वुजू से 2 फर्ज अदा कर सकते हैं, इसी तरह 2 फर्ज अदा कर सकते हैं। किसके नजदीक? और इमाम शाफी के नजदीक एक तयम्मुम से 2 फर्ज अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तहारत जरूरत है एक फर्ज को अदा करना, जरूरत है एक फर्ज को अदा करना, तो लिहाजा एक तयम्मुम से 2 फर्ज अदा नहीं कर सकते। किसके नजदीक? वाज़ेह हो गया। आगे, तयम्मुम करने वाला वुजू करने वाले की इमामत करा सकता है या नहीं? तयम्मुम करने वाला करवा सकता है या? इसमें इख्तिलाफ है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं तयम्मुम करने वाला वुजू करने वाले की इमामत करवा सकता है। इमाम आज़म के नजदीक तयम्मुम करने वाला वुजू करने वाले की क्यों? क्योंकि तयम्मुम तहारत कामिला का फायदा देता है। तो जिस तरह वुजू करने वाला तयम्मुम करने वाले की इमामत करवा सकता है, इसी तरह तयम्मुम करने वाला वुजू करने वाले की इमामत करवा सकता है। और शाफी के नजदीक क्यों नहीं करवा सकता? उनके नजदीक जरूरिया है, जरूरिया है। और एक कायदा है, एक है तहारत कामिला, एक है तहारत जरूरिया। जो तहारत कामिला है वो है आला, तो जो तहारत जरूरिया है वो है अदना, नाकिस। समयारी कायदा ये है कि नाकिस आला की इमामत नहीं करवा सकते। स्वाफी के नजदीक क्या कायदा ये है कि नाकिस आला की इमामत तहारत जरूरिया वाला तहारत कामिला वाले की इमामत नहीं करवा सकता। पानी के नुकसान देने की वजह से तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं? पानी नुकसान देता हो, पानी का इस्तेमाल नुकसान देता हो, तो फिर पानी को छोड़कर तयम्मुम कर सकते हैं या? इमाम आज़म का नजदीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि तयम्मुम तहारत कामिला है। जिस तरह वुजू तहारत कामिला है, इस तरह तयम्मुम भी तहारत कामिला है। समझ आ रही? और इमाम शाफी के नजदीक नहीं कर सकते। और फरमाते हैं उस वक्त तक कर सकते हैं जब तक मुकम्मल यकीन हो कि जान चली जाएगी या उज़्र चला जाएगा, वरना उसके अलावा नहीं कर सकते। ईद और नमाज जनाजा के लिए तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं? ईद और इमाम आज़म के नजदीक क्यों? तहारत कामिला है, तहारत जिस तरह वुजू कर सकते इस तरह ये भी कामिला है। बात समझ आ रही? और इमाम शाफी के नजदीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जरूरत है फर्ज को अदा करना, जबकि नमाज ईद फर्ज नहीं है। नमाज जनाजा फर्ज ऐन नहीं है, नमाज जनाजा, इसलिए नमाज जनाजा और ईदैन के लिए इमाम शाफी के नजदीक तयम्मुम नहीं कर सकते। आगे, वजवाज़ु बिनियति तहारत की नियत के साथ तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं? पाकीज़गी हासिल करना, इसकी नियत के साथ तयम्मुम, इसमें इमाम शाफी और इमाम आज़म का इख्तिलाफ है। इमाम आज़म के नजदीक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि
कामिला है, जिस तरह वुजू तहारत कामिला है, जिस तरह वुजू तहारत की नियत से कर सकते हैं, इसी तरह तयम्मुम भी इमाम शाफी के नजदीक तयम्मुम तहारत की नियत से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये तहारत क्या है, तहारत जरूरी है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी समझ आ रही, इसलिए तहारत की नियत के साथ तयम्मुम नहीं कर सकते। देखें जी वाला हाजा कुलना, इसी उसूल पर हमने कहा इन तयम्मुम युफीदु तहारत, बेशक तयम्मुम तहारत का फायदा देता है। लिअन्ना कौलहु तआला, इसलिए अल्लाह का फरमान वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम, वलाकिन युरीदु, अल्लाह इरादा फरमाता है तुम्हें क्या कर दे, पाक कर दे। सरीहुन फी उसूल तहारत, ये अल्फाज ये तकरीमा सरी है तहारत के उसूल में, तयम्मुम के साथ तहारत के उसूल में सरी है। वली शाफी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इसमें दो कौल है। इमाम आज़म के नजदीक हमने क्या पढ़ा था कि तहारत कामिला का फायदा देता, दलील क्या थी, वलाकिन युरीदु लियुताहिरकुम। अच्छा आगे इमाम शाफी के नजदीक दो कौल हैं, किसके, तयम्मुम के। कौन से? पहला कौल अहदुहुमा, पहला कौल अन्नहु तहारतुन ज़रूरियतुन, पहला कौल क्या है, तहारत है। वलाखरु, दूसरा कौल अन्नहु लैसा बितहारतिन, ये तहारत नहीं है, ये तहारत बोलो बल्कि सातिरुन लिल हदस है, हदस को छुपाने वाला है, हदस को छुपाने वाला है। वाला हाजा युखरजुल मसाइल, इसी उसूल पर मसाइल की तखरीज की गई है अला मज़हबैनी, दोनों मजहबों पर। दोनों मजहब कौन कौन से? मिन जवाज़िही क़ब्ल अल वक्ति, वक़्त से पहले जायज है या नहीं, वक़्त से पहले तयम्मुम करना इमाम आज़म के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक वायदाउल फर्ज़ैन बि तयम्मुमिन वाहिदिन, एक तयम्मुम के साथ दो फर्ज अदा कर सकते हैं या, इमाम आज़म के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक व इमामतिल मुतयम्मिम लिल मुतवज़्ज़िईन, और तयम्मुम करने वाला, वुज़ू करने वालों की इमामत इमाम आज़म के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक व जवाज़िही बिदूनी खौफि तलफिन नफ्सी अविल उज़वी बिल वुज़ूई, और जायज है नफ्स के यानी जान के चले जाने के खौफ के बगैर, या उज़्व के चले जाने के खौफ के बगैर, बिल वुज़ूई, वुज़ू के साथ। क्या मतलब? यानी पानी नुकसान देता हो तो तयम्मुम कर सकते हैं या नहीं? इमाम शाफी के नजदीक, इमाम आज़म के नजदीक कर सकते हैं। इमाम शाफी के नजदीक कब कर सकते हैं? जब पूरी जान ही चले जाने का खौफ हो, या पूरे उज़्व का चले जाने का खौफ। व जवाज़ु लिल ईदी वल जनाज़ती, जनाज़े और ईद के लिए तयम्मुम कर सकते हैं या, इमाम शाफी फरमाते हैं, इमाम आज़म अच्छा। व जवाज़ी बिनियत तहारा, तहारत की नियत के साथ तयम्मुम करना जायज है या नहीं, इसमें इमाम शाफी और आज़म का इख्तिलाफ है। इमाम शाफी क्या फरमाते हैं और इमाम आज़म क्या फरमाते हैं? कर सकते हैं।